A very good evening to one and all present here. I am Harshika Kasliwal and I'm extremely overwhelmed to get this opportunity to address you all to this wonderful event on this very interesting topic, everything you need to know about solo traveling, by our wonderful speaker, Ms. Lipi Goyal. Ms. Lipi Goyal is an award-winning multilingual celebrity anchor with 1,500 plus events to her credit. An alumni of Ferguson College and Micah, Libby has hosted shows and events for who's who of the corporate world across the country and internationally. She has also hosted award ceremonies, conclaves, product launches, and weddings. She also does other hats and has acted in plays, TV shows, and Hindi and Gujarati movies alongside leading actors. A Marwari brought up in Ahmedabad is now a cosmopolitan girl who lived in Pune, Bangalore, and Mumbai for better opportunities and exposure. It was one of her best decisions as these cities opened a new world of opportunities for her. Libby has carved a niche for herself as a successful and award-winning anchor, moderator, podcaster, and TV and film actor. She is also a successful soft skills trainer and conducted workshops to her participants enhance their public speaking skills. So let's give a huge round of applause for her and welcome her on the dais. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you. Over to you. Very good evening. Thank you so much. Thank you so much. Like she said, I don many hats, right? So उसमें से एक एंकर का हैट है. So जैसे ही माइक मेरे हाथ में आता है, so I just feel मैं आज स्टेज पे आते ही और माइक हाथ में लेते एक एंकर बन जाती हूँ और ऑडियंस को एनर्जाइज करना जो है एज एन एंकर आई फील सबसे पहले मेरा काम होता है. सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल टू अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर इन्वाइटिंग मी ओवर हियर ऑन दिस लवली टॉपिक. इट सेज एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सोलो ट्रैवल, पर मेरा ये मानना है कि किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता है, राइट? नोबडी नोज एवरीथिंग. सो जितना मेरा एक्सपोजर रहा है, जितना मेरा नॉलेज रहा है, उसको दिमाग में रखते हुए मैंने एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन बनाई है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दैट मैं आप लोगों की जितनी हेल्प कर सकूँ, जितना नॉलेज मैं शेयर कर सकूँ और हो सके तो आप लोगों से भी दो बातें सीख सकूँ, वो सीख कर जाऊँ. सो द फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स आई फील आई एम लिटिल मोर स्ट्रेंजर टू यू. She has helped to get little acquainted. So I am professionally an anchor, I'm an actor, I'm a model. You can hear my podcast. It's called Daily Dose of Inspiration with Lippy on Spotify and Apple Podcast and Google Podcast. And of course, I'm a public speaking coach where I teach and I coach to students and individuals and CEOs and CXOs to not have stage fright and have a lovely smile when they are on stage and speak confidently. Now, the reason why I'm here is also because I'm a solo traveler. So why am I a solo traveler? The first question is, बिकॉज जैसे एक जोक है पूरे इंडिया में कि गोवा का प्लान कभी बनता ही नहीं है दोस्तों के साथ. यू नो, कितना भी ट्राई कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, वो गोवा का प्लान सक्सेसफुल हो नहीं पाता. सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, माई कॉलेज डेज, कि हम गोवा चले जाए, बॉम्बे चले जाए, कहीं तो चले जाए, जो हम 4 दोस्त थे, पर वो हो नहीं पाया. लकीली थैंक्स टू माई कनेक्शन विद रोटरी क्लब, the younger wing is called Rotaract Club. So Rotaract Club के through मैं first time यूरोप गई, which was also my first time international exposure. And since I was there for 10 days, I was in Belgium. I thought why not explore दूसरे जो areas है वहाँ के. So typical tours and travel के through, my parents being very, you know, trying to be very protective, उन्होंने एक tours and travel के through एक हफ्ते का एक book किया, स्विट्जरलैंड, पेरिस, जर्मनी, दो दिन लेके जा रहे थे. And there I realized कि यार अगर मैं ऐसे travel करूँगी तो मुझे जो करना है वो तो मैं कर नहीं पाऊँगी. एक बस में मैं 50 इंडियंस के साथ, ज़्यादातर जो फैमिलीज ही है 2 बच्चे के साथ, वो है वहाँ पे, और वो बस मुझे 1-1 घंटा हर जगह स्टॉप करवा रही है और बोल रही है हाँ आप म्यूजियम જોઈ आओ, આ પાણીપુરી ખાઈ લો, આ જૈન ખાવાનું છે. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस अगर मैं अहमदाबाद में खा रही हूँ और अहमदाबाद में घूम रही हूँ और मैं वहाँ कहीं पेरिस में घूम रही हूँ, राइट? सो मैं चाहती थी कि मैं इस तरीके से ट्रैवल करूँ कि मुझे थोड़ा और टाइम मिले अपने लिए, वहाँ जिस कंट्री में जा रही हूँ, जिस सिटी में जा रही हूँ, उसके कल्चर को समझने के लिए. एंड दैट्स व्हेन आई थॉट, उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कोई टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू कहीं नहीं जाना है. मुझे अपने आप ट्रैवल करना है या मुझे अपनी फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करना है, बट सारी बुकिंग्स किस तरह से करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, जहाँ तक हो सके वो मुझे अपने आप करना है. एंड दैट्स व्हाट आई डिड नेक्स्ट ईयर एज वेल. I traveled, and where have I traveled? Well, so the easiest way generally is जहाँ आपके दोस्त हैं. Why?
द रीज़न बीइंग कि उनको वो शहर पता होता है. आज मुझे माणिक चौक पता है, आज मुझे लॉ गार्डन पता है, आज मुझे अडालजनी वाव पता है, राइट? आज मुझे शॉपिंग स्ट्रीट्स पता है और मुझे बहुत अच्छे अच्छे खाने की जगह पता है जो शायद जोमेटो मुझे नहीं बता पाएगा, स्विगी मुझे नहीं बता पाएगा अगर मैं यहाँ आके रहती हूँ तो. सो फर्स्ट आई ट्राइड कि ठीक है मेरे फ्रेंड्स कहाँ हैं जहाँ मैं जा सकूँ, या मैं अगर कहीं जा रही हूँ तो मैं पूछ सकूँ कि हे आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई रिलेटिव है जहाँ मैं जा सकती हूँ. सो सेकेंड टाइम जब मैंने रोड ट्रैक के एक्सचेंज कैंप में अप्लाई किया, आई वॉज गोइंग टू जर्मनी. द फर्स्ट टाइम मैं बेल्जियम गई जहाँ मैं टूर्स एंड ट्रैवल के थ्रू गई थी. द सेकेंड टाइम आई वेंट टू जर्मनी एंड उसके बाद मैंने वहाँ से सोलो ट्रैवल किया एम्स्टरडैम, वियना एंड प्राग. वेरी स्मॉल सिटीज़, हर जगह मैंने 2 से 2 दिन निकाले एट मैक्स. एम्स्टरडैम देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज काउच सर्फिंग उस टाइम पे, दिस इज 10 years बैक. एयरबीएनबी की जगह देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज काउच सर्फिंग. अगर आप बहुत दिल वाले हैं, आपका घर भी उतना ही बड़ा है, सो आप एक रूम किसी गेस्ट को दे सकते हैं, किसी को दे सकते हैं जो आपका शहर देखना चाहते हैं. सो काउच सर्फिंग के थ्रू मैं एम्स्टरडैम में गई. वहाँ रेटिंग्स रिव्यूज सब होते हैं एग्जैक्टली जैसे एयरबीएनबी में होस्ट के लिए होता है. एंड आई लिव देयर फॉर two days in Amsterdam and I absolutely fell in love with the city. I had some amazing food over there, hash brownies which is very popular also. I tried that also, and of course जो host थे वहाँ पे, he helped me to sort of help me to understand that how can I do the hop on hop off buses होते हैं, walking tours होते हैं वहाँ पे. सुबह जो students वहाँ पढ़ते हैं वो free में वहाँ tours लेते हैं and then out of courtesy, out of love आप उनको जो चाहे वो as a pocket money दे सकते हैं. So 2 days I lived in Amsterdam. I went to Germany which was a Rotary camp. उसके बाद आई हैड 1 day spare so I didn't know what to do, बट मैंने वो खाली रखा था जानबूझ के. आई वाज लाइक मैं वहाँ जाके डिसाइड कर लूँगी कि एक दिन क्या करना है. सो somebody from the camp recommended me कि आप प्राग जा सकते हो. प्राग इज़ क्लोज बाय एंड इट्स अ स्मॉल सिटी, 1 या 2 दिन में हो जाएगा. सो फ्रॉम देयर आई वेंट टू प्राग. मैं बस में गई. आई बुकड अ हॉस्टल ऑनलाइन, 600 रुपीज़ INR पर नाइट. आई बुक दैट हॉस्टल. ऑफकोर्स आई नो इट्स चीप बट हॉस्टल का फंडा वो होता है. इफ़ यू वॉच द फिल्म क्वीन देन ऑफकोर्स यू कैन अंडरस्टैंड हाउ हॉस्टल लाइफ इज़ एज वेल. इवनिंग में हॉस्टल्स में नीचे वहाँ एक गेमिंग रूम जैसा होता है जहाँ सब एज ग्रुप, सब जेंडर, सब जगह से लोग आते हैं. दे गैदर टुगेदर, दे प्ले गेम्स, दे गेट टू नो ईच अदर. कुछ लोग निकल जाते हैं अपने आप घूमने के लिए, कुछ लोग वहीं हॉस्टल में रहते हैं. सो लकीली मेरा भी एक गैंग बन गया वहाँ पे एंड देन वी वेंट फॉर पब क्रॉलिंग वहाँ पे एंड देन आई रियलाइज वाओ दिस इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. सो मैं वहाँ से प्राग गई एंड देन आई वेंट टू वियना, which for me has been the most beautiful experience in terms of monuments. Architecturally, Vienna is absolutely amazing. और अब मैं वियना में किसके यहाँ रुकी? मैं रुकी अपने एक फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड के घर पे. सो ना, और इस फ्रेंड को मैं कहाँ मिली? मैं कश्मीर में गई थी ट्रैकिंग करने के लिए. सो बिफोर द रोटरी थिंग मैं कश्मीर गई थी जब ये जवानी है दीवानी फिल्म आई थी. सो आई गॉट वेरी इन्फ्लुएंस बीइंग एन एक्टर एंड बीइंग अ बॉलीवुड बफ. मैं वो फिल्म देख के बहुत एक्साइट हो गई. मुझे लगा ट्रैकिंग तो यार अपने को भी करनी है एक बार, जब तक घुटने जवाब नहीं दे दे, कमर जवाब नहीं दे रही है. आई वाज वेरी यंग दैट टाइम. सो आई थॉट लेट्स गो एंड डू अ ट्रैक. ये हम कर सकते हैं, ये जवानी. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एज ब्यूटीफुल एज इट्स शोन इन द फिल्म जब आप ट्रैकिंग करने जाते हो. सो इट इज़ अ डिफरेंट चैलेंज, इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. बट येस, वंस अगेन मैंने ट्रैकिंग में बहुत अच्छे दोस्त बनाए जिन्होंने मुझे बहुत ग्राउंडेड रहना सिखाया, हम्बल रहना सिखाया. आई हैड नेवर थॉट कि मैं कोई छोटे से पहाड़ के पीछे जाके सुबह 6 बजे वहाँ पे मैं पूप करने वाली हूँ, या मुझे 3 दिन तक मैं नहाऊंगी नहीं तो चलेगा, या मैं एक ही कपड़े में 3 दिन तक रह सकती हूँ, और मे बी 0 डिग्री पे मैं अच्छे से मैगी और चाय का एक मज़ा ले रही हूँ. एंड दीज वर ऑल स्मॉल जॉयज़ दैट वी ऑल हैड एंड लॉट ऑफ पीस. ऑफकोर्स आप जितना ऊँचा जाते हैं आप पहाड़ों और क्लाउड्स के नज़दीक आते हैं और उतनी ही ज़्यादा शांति आपको मिलती है. सो उस वक्त मैं बॉम्बे में रहती थी. आई हैव मूव टू अहमदाबाद नाउ, लेकिन तब मैं बॉम्बे में रहती थी और बॉम्बे से एकदम कॉन्ट्रास्टिंग लाइफ मुझे वहाँ मिली. मैं टेंट में थी 1 हफ्ता, स्लीपिंग बैग्स के अंदर थी. आई वॉज शेयरिंग द टेंट विद समबडी एल्स एंड वॉज अ डिफरेंट एक्सपोजर. आई केप्ट इन टच विद देम एंड देन आई टोल्ड देम कि मैं यूरोप जा रही हूँ. सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड, ओ डूड, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ पे है, हम लोग टच में है, तू वियना जा, बिंदास रहे उसके यहाँ, शी इज़ वेरी नाइस, शी इज़ वेरी वेलकमिंग. एंड शी वॉज. मैं प्राग से वियना गई बस में. वियना में मैं 2 दिन रुकी. शी टुक मी अराउंड. मैंने अकेले भी घूमा, मैंने वॉफल्स खाए, बहुत सारी चीज़ें खाई. आई एक्सप्लोर्ड द सिटी इन माई ओन वे. मुझे अगर ओपेरा देखना था तो मैंने एक दिन ओपेरा देखा, और मुझे कुछ और म्यूजियम नहीं देखना था तो मैंने वहाँ पे 15 मिनट से ज़्यादा मैंने वहाँ वक्त नहीं बिताया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रैकिंग हेल्प मी टू
connect with more people, which later helped me to connect further. I am still in touch with a lot of them till today through WhatsApp, through Facebook Messenger and Instagram as well. So where I've traveled जहाँ जहाँ ज़्यादातर मेरे दोस्त रहे हैं, नहीं रहे हैं, तो thanks to Airbnb now that I book Airbnb and I go there. And anywhere that has an adventure spot. Now why an adventure spot? Because I feel that एक life में चैलेंज आपको करना चाहिए अपने आप को. हर एक इंसान का एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाता है. योर टीम इज वर्किंग वेरी वेल, योर लाइफ इज वेरी गुड, यू हैव अ कार, मे बी यू हैव अ हाउस, मनी इज फ्लोइंग इन. सो देन हाउ डू यू चैलेंज योर सेल्फ? Either you start a new startup, a new venture, probably, or else what do you do? So ये मेरा फंडा रहा है हमेशा. To challenge myself, I would take up an adventure sport. ये मेरा तरीका रहा है. बिकॉज एनी टाइम आई डू समथिंग, ऑफकोर्स अगर मैंने बंजी जंप किया है तो वहाँ एज पे जब मैं खड़ी हूँ तो नीचे देख के एक बार तो लगता ही है कि यार इतनी मेहनत से जो करियर बनाया है, मतलब इंसान ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, राइट? बट ऑफकोर्स एक फीलिंग एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट तब आती है. जैसे ही आप कूदते हो 15 सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन वो 15 सेकेंड जो है आपको पूरा लिटरली ज़मीन पे ले आता है. आप होते हवा में हो, होते आसमान में हो, पर आप बिल्कुल ज़मीन पे आ जाते हो. सो यू बिकम मोर हम्बल, यू बिकम मोर ग्राउंडेड. सो आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू ट्रैवल एनीवेयर वेयर देयर इज एन एडवेंचर स्पॉट. एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर माई 2 Germany trips was going to Bali, क्योंकि मुझे स्कूबा डाइविंग करना था. So I make small goals in my life to achieve them. So मेरा फंडा था कि 25 साल की मैं हूँ उसके पहले मुझे बेसिक स्कूबा डाइविंग कोर्स जो होता है, ओपन वाटर डाइवर जिसे हम कहते हैं, सो आई वांटेड टू डू दैट. सो आई स्टार्टेड सेविंग मनी अकॉर्डिंगली. मैंने फ्लाइट्स चेक कर ली, मैंने कोर्स का फ़ी चेक कर लिया, मैंने एयरबीएनबी पे स्टे का देख लिया. सो आई हैड अ रफ बजट कि इस बजट में मेरा एक ट्रिप बाली का बन सकता है. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई वेंट टू बाली. आई डिड द ओपन वाटर डाइविंग वेयर माई इंस्ट्रक्टर वॉज फ्रॉम जर्मनी. ही वॉज एन इलेक्ट्रिशियन एक्चुअली इन जर्मनी, और वो बाली इसी तरह से ओपन वाटर करने आए थे. एंड देन ही फेल इन लव विद बाली, और फिर उन्हें पूरा इंस्ट्रक्टर लेवल का कोर्स कर गया और वहीं पे वो बस गए. एंड ही टॉट मी. और जब मैं, आई लव स्विमिंग, आई एम अ वाटर बेबी, आई एम अ स्टेट लेवल स्विमर. पर जब मैंने एक्चुअली वो सब सीखा और जब मैं नीचे गई, अंडर वाटर गई, फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट अंडर वाटर, सब सिखा के उन्होंने बोला ओके जस्ट प्रेस द बटन, इन्फ्लेट एंड गो डाउन. एंड आई वेंट डाउन और सांस नहीं आई और आँख फट गई और फेफड़े फट गए और मुझे लगा हे भगवान ये क्या हो गया. आई थॉट आई वाज अ वेरी गुड स्विमर. एंड जैसे ही नीचे गई मैं, आई जो डोंट नो व्हाट हैपेंड, द वर्ल्ड वेंट टॉपसी टर्वी फॉर मी, और मैंने डिफ्लेट का बटन दबाया और मैं तुरंत ऊपर आ गई. एंड देन ही सेड ये क्या हुआ? आई सेड आई डोंट नो, आई जस्ट गॉट वेरी स्कैर्ड. मुझे लगा मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊँ. सो दैट हैविंग दैट फीलिंग, राइट, वो फीलिंग मुझे रोज तो नहीं आती है. व्हेन आई एम ड्राइविंग, व्हेन आई एम ऑन स्टेज ओवर हियर, आई डोंट हैव दैट फीलिंग. बट वो फीलिंग जब मुझे आई तब मुझे लगा कि ओ माई गॉड, लाइक आई एम सच अ स्मॉल मिनिस्क्यूल thing, not even a person, such a small minuscule person thing in this entire world. और फिर जब मैं वापस, and then he said okay आप ठीक है. So of course when we do scuba diving we talk in sign languages. I'm sure आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी होगी. So he was like okay. So then he said are you okay? So I said yeah. And we Indians have this thing कि हम ऐसे जवाब देते कुछ भी, जम्बू छे तारे, okay जाऊ छे तारे. And he said, I don't understand what you're doing. What is this? Either it's a yes or it's a no. What is this 50-50? So he said, are you okay? Don't wobble your head. I was like, okay, fine. I'm already मेरी इतनी, I'm like, so this thing मेरे दिमाग में 1000 thoughts चल रहे हैं. Now he's telling me क्या. So I said, yeah, I'm okay. Let's go, let's do it. So he said, ठीक. And then we went down. We did the entire course. And then luckily, I became so good that he told me, let's do a 360-degree twirl. And I was like, okay, let's try doing that. And I was like, still okay. 360-degree का पूरा twirl करके I managed. And he was very happy, and I got a certificate also. So I did the basic course, then I did the advanced course, and then there is a third level which is called emergency rescue diver, where you can, आप किसी और को भी बचा सकते हैं अगर कोई मुसीबत में है. So there's a 3-day course of emergency rescue diver, and I did that course as well. Again, self-challenging क्या था उसमें? मुझे उसमें as a part of the course, I had to lift 80 kg का एक इंसान. दैट इज माई, क्योंकि अगर मैं समुद्र के बीच में हूँ और वो डूब रहा है, सो हाउ डू यू लिफ्ट हिम? सो देर इज़ अ टेक्निक, देर इज़ अ प्रोसेस कि आप उनको शोर तक ला सकते हैं, सी के बिगिनिंग तक ला सकते हैं, बट उसके बाद आप क्या करोगे? आप उसको घसीट के नहीं ले जा सकते हो, राइट? सो दे टॉट मी दैट अगेन, दैट आप कैसे एक 80 से 90 किलो के इंसान को, इवन इफ यू आर नॉट वेइंग दैट मच, आप उन्हें उठा सकते हैं. सो आई डिड दैट.
एंड देन उसके बाद मैंने काफ़ी ट्रैवल किया. मैं दुबई गई, आई वेंट टू अमेरिका ऑल्सो. लकीली विथ माई एंकरिंग मुझे नेपाल जाने का मौका मिला, जहाँ पे मैंने आई डिड द शो एज एन एंकर, मैंने होस्ट किया. एंड देन ऑफकोर्स बीइंग अ ट्रैवलर मेरा दिमाग चलने लग गया कि मैं 2 दिन तो और रह सकती हूँ और मैं क्या कर सकती हूँ. एंड देन आई डिस्कवर्ड दैट एशिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट जो है वो नेपाल में है, विच आई वॉज नॉट अवेयर दैट टाइम. दिस वॉज लाइक 5-6 years बैक. सो आई सेड या व्हाई नॉट, लेट्स डू दैट. 2-3 दिन और रुक कर ये करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं. So I'll show you that video as well. I think it's there, it's part of the PPT. Yes. One second. कितना भी आप प्रिपेयर कर लो टेक्नोलॉजिकली, आई एम ऑलवेज चैलेंज्ड. Hi, I'm Lippy. This is my first bungee jumping. Hi, Lippy. Yes. How's it going? I'm too nervous but excited at the same time. When I enrolled for it, I wasn't sure if I can do it. But let's keep fingers crossed. And then he's telling me, look happy, show you're so happy. And I'm like, yeah, okay, right, okay, thank you so much. Till today when I watch this video, I get goosebumps and I remember that feeling. And ये करने के बाद they had something else called as canyon swing, झूला, जो हम झूला झूलते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ का. So I had the opportunity to do that as well. I was like, हाँ ठीक है, अब तो मतलब पता ही है कि कुछ नहीं होना है, safely आप नीचे जाने ही हो. So I was like, हाँ चलिए ये भी कर लेते हैं. So that's what I did. And then recently I was in Canada for 4.5 months, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं इतना लंबा ब्रेक लूँगी मेरी ज़िंदगी का. But yes, everything teaches you a lot. So I landed there on 31st of Jan and I landed here back on 15th of June. And वो शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शब्द में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4.5 महीने एकदम ग्राउंड लेवल से ज़ीरो से सब कुछ शुरू करना, -35 डिग्री में वहाँ जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे ब्लेजर्स और ओवरकोट और सब लेके, एंड देन ट्राइंग टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच वॉज वेरी डिफिकल्ट. बट टुडे आई से इट डिफिकल्ट, बट इन द कॉन्ट्रास्ट इट्स ऑल्सो एज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश्ड एक्सपीरियंस आई हैड. मैंने वहाँ जाके कोई एडवेंचर स्पॉट नहीं किया, क्योंकि एवरी डे वॉज एन एडवेंचर स्पॉट फॉर मी. वहाँ जाके लोगों से मिलना, बातें करना, एक कंट्री को समझना, कल्चर को समझना, अंडरस्टैंडिंग वॉट वर्क अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव और यू डोंट हैव, दैट वॉज इक्वली डिफिकल्ट. एट द सेम टाइम दो आई वॉज लिविंग इन बॉम्बे, भले मैं बॉम्बे में थी, बट मैं महीने में 1-2 बार आ जाती थी, तो मुझे मेरे मॉम डैड से मिलने का मौका मिल जाता था. यहाँ मैं 4.5 महीने तक अपने मॉम डैड से नहीं मिली. सो द आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ योर फैमिली वॉज वेरी वेरी डिफरेंट. जो मुझे लगता था आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, आई एम वेरी दिस, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके यूथ है, यूथ तो अलग ही रहते हैं, कर देंगे काम. बट आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग विथ योर फैमिली एज वेल. व्हेन आई वाज 4.5 months away, I realized the importance of surviving literally in -30 degrees, from -30 degrees to 15 degrees. By the time I came back, June में, the temperature was almost 15 degrees. And week by week लोगों से बात करके, लोगों को अप्रोच करके, समझ के कि of course human being is same all over the world. The psychology, the thinking is same all over the world. It's just कि आप कैसे किसी को अप्रोच करते हो. It's just about that. So Canada was very welcoming. Undoubtedly Canada was very 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 welcoming for me. क्या हुआ, 1 महीने ठीक है, आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, आई वॉज अपसेट, ओ गॉड कहाँ आके फंस गई, कहाँ बैठ गई, ये क्या कर लिया मैंने, कुछ ज़्यादा ही सेल्फ चैलेंज को मैं ऊपर रह ले गई. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर 1.5 months, when I started talking to people, I started connecting with event managers over there, I started connecting with radio stations over there. I sat down, मैं बैठी और मैंने सोचा, okay, मेरे क्या क्या avenues है जो मैं explore कर सकती हूँ. So one was of course anchoring, other was acting, maybe being a travel blogger, a YouTube blogger, and then of course being a RJ, because there's a gift of voice thanks to my job. And luckily with that,
I also traveled. I had the opportunity to attend Arijit Singh's concert over there in Vancouver. People saw my Instagram stories, and then one of my school की junior थी मेरी जो Vancouver में पढ़ रही थी, and she said, "अरे तू Canada आई है, why don't you come and stay with us?" I said, "चलो ठीक है, why not? Definitely, you know, somebody's inviting me." I lived there. I lived there for a week. Again, a very beautiful city. And then somebody saw I was in Vancouver. So a friend of mine जो अहमदाबाद में ही है, he's a photographer. उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अरे मैं अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट पूरा शूट कर रहा हूँ, तू वैंकूवर में, तू अपने फ्रेंड्स के साथ आ जा. I said, why not? Chalo, let's go. So one after the other, of course, the doors opened for me. Another thing that happened, there's a small town called Drumheller, which is very beautiful. It almost looks like Alaska. So मैंने एक दो इवेंट मैनेजर से बात की थी जहाँ मैं कैलगरी में रह रही थी. एंड दे सेड कि अरे विशाल भारद्वाज आ गया છે, એમની કોઈ ફિલ્મ શૂટ કરી રહ્યા છે તબ્બુ સાથે, તારે આવું છે? I said, हाँ चलो चल सकते हैं, अभी कुछ काम वाम तो है नहीं, तो चलो चलते हैं, why not? I went there. Luckily I was awarded by his wife as the best anchor 6 महीने पहले, last October में. This was probably in April. So October में I was awarded as the best anchor by his wife. So I went there, I greeted him. I said, sir, hello, this is Lippy. I'm also an artist just like you are. And you know, it's just, life has come to full circle for me today because आपकी wife से मुझे award मिला था और आज आपसे मिलने का मौका मिला है. So I'm very happy to know and happy to see you, and that's it. We saw the shoot. हमें वहाँ ऑडियंस में बिठाया, उन्होंने अच्छे से खाना वाना भी खिलाया. एंड वी सॉ द शूट. इफ़ यू नो द सॉन्ग अरे रुक जा रे बंदे बाय राहुल राम, yeah. He was shooting, he was singing. It was the main song of his upcoming film. So हमें वहाँ ऑडियंस में बैठने का मौका मिला, फिल्म देखने का मौका मिला, glimpses देखने के मौके मिले. And I tried to probably make a small video also, if you know, with his permission, of course, and he was very supportive on that part as well. Hi guys, if you remember, Is the audio there? I was awarded by her 6 months back, and look who I have today over here. Hi guys, if you remember, I met Rekha ma'am and I was awarded by her 6 months back, and look who I have today over here. नसीब कहाँ से कहाँ ले आता है. We both are in Canada and I have Vishal sir, and I hope you're liking the wind over here. Yes, I'm liking. I'm going for my shot. Okay, bye. It's very humble, very nice, but अगर यही कनाडा में अगर 5 साल पहले गई होती, honestly, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं सर के पास जाऊँ, उनसे बात करूँ, उनसे बोलूँ कि मुझे एक वीडियो मिल सकता है, फ़ोटो भी मिल सकता है, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती. बट क्योंकि मैंने हर एक स्टेज पे अपने आप को इतना चैलेंज किया था, सो धीरे धीरे आई फील के सेल्फ मोटिवेशन जो था मेरा हर साल बढ़ता गया, चाहे वो ट्रैवल करके हो, चाहे वो काम करके हो. एंड इवेंचुअली आई फील के कुछ भी होता है लाइफ में, सो आई फील हाँ ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, हाँ ये भी कर लेंगे. नाउ आई लिटरली फील के ये कर लिया है तो ये क्या बड़ी बात है. नाउ आई कैन वे ऑन द पैलेट. द नेक्स्ट थिंग वॉज दैट आई ऑल्सो आई हैड टू मेक अ लिविंग. वहाँ पे काम तो करना ही था अगर डॉलर्स में खर्च करने थे पैसे, राइट. सो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बिकम RJ एट रेड FM ओवर देयर. इट्स अ डिफरेंट रेड FM, नॉट द इंडिया वाला रेड FM. आई गेव 3 rounds of interviews and two trainings I took. But by the time I could join them, I had to come back to India. So I took the training, I joined them. I had an exceptionally beautiful experience. मैंने कभी RJ की training नहीं ली थी. So just to understand that how things work in the backspace, in the back office also, it was absolutely amazing. The whole Punjabi community was there. They were very welcoming, and they offered me a weekend show to begin with. Of course, I had my profile, I had my website, so they saw all of that. उसके बाद उनके head office टोरंटो में था, so they took a Zoom interview of mine. लेकिन ये मुझे ऐसे नहीं मिला. अभी बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तब वहाँ कनाडा में जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैं 3 लेयर के कपड़े पहन के, ओवरकोट पहन के, स्नो शूज़ पहन के, 2 बार उनके ऑफिस में, मतलब 3 बसेस बदल के मैं उनके ऑफिस में गई थी. मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया. मैंने उनको सामने से बोला कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई हैव कम ओवर हियर, और आई एम जस्ट लुकिंग फॉर जॉब. सो एक बार वो मुझे मिले भी नहीं, कोई भी नहीं था, उनकी टीम कहीं बाहर गई थी. सो आई फाउंड नोबडी. मैं 1 घंटा ट्रैवल करके -30 में वहाँ पहुँची, इतना बर्फ़ में चल के, एंड देन यू रियलाइज नो बडी इज़ देयर. आई वाज लाइक ठीक है. आई केम बैक होम. आई वाज लिटिल डिसहार्टेंड. नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया एंड दे सेड दैट लिपि सॉरी वी मिस्ड यू, आप कल वापस इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं प्लीज़. एंड आई वेंट देयर. उसके 1 महीने बाद
They said the Toronto team आपका interview लेना चाहेगी, will you be available? I said definitely. And after 1 month after that, पूरा 3 महीना तो ऐसे ही निकल गया. And then they said that we are ready to go now. We can do a show with you on the weekends to begin with. And then धीरे धीरे we'll see how it goes. So I feel this whole fire in me to go and approach people, वो भी eventually stage by stage आया था. जब मैं वहाँ फरवरी में लैंड हुई थी तो I was very negative about myself कि मैंने क्या कर लिया, क्यों आ गई, मैं क्या करूँगी यहाँ पे. But then of course I pulled my socks. I came to the reality कि बॉस जो है यही है और अभी यही करना है. Let's start, let's write down what all you can do. And slowly and steadily with each week passing, things went very nice for me. Opportunities started coming for me. We have something called as Comic Con in बॉम्बे, इंडिया में, अहमदाबाद में शायद हुआ नहीं. कॉमिक कॉन जहाँ सारे कॉमिक कैरेक्टर्स जो है वो ड्रेसअप होकर आते हैं, कॉमिक्स बुक बिकती है पुराने ज़माने की, आज के ज़माने की. सो समथिंग वेरी सिमिलर हैपेंड इन कैलगरी विच इज़ कॉल्ड कैलगरी एक्सपो. सो ये जो मेरे साथ है, ही इज़ अ नाइजीरियन एंकर ओवर देयर. इनका नाम है लॉन्ड्रे अजय. एंड मैंने इनको लिंक्डइन पे कनेक्ट किया. आई जस्ट लिंक्डइन पे मैंने सिर्फ लिखा कि एंकर्स इन कैलगरी करके, एंड इनका नाम पहले आया. मैंने इनको मैसेज ड्रॉप किया. मैंने कहा सर आई एम फ्रॉम इंडिया, आई हैव कम हियर, मैं भी एक एंकर हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं. ही कॉल्ड मी, वी स्पोक ऑन कॉल. ही सेड मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. एंड देन ही वॉज शूटिंग ओवर हियर द कॉमिक कॉन, इंटरनेशनल कॉमिक कॉन. एंड देन ही सेड प्लीज़ कम एंड आई वुड लव टू हैव यू एज अ को होस्ट. And I was more than happy. I was like, चलो अच्छा है, मुझे एक इंटरनेशनल वीडियो मिल रहा है. I'm getting to work with another culture, another country's anchor. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है. And we had a great time. He was very sweet. जब वो मुझे introduce कर रहे थे, he said, so I have the Indian princess over here as my co-anchor. And I was like, okay, इतना बड़ा compliment मुझे कभी मिला नहीं है. But thank you so much. This video is there on YouTube as well. And I was very nervous, no matter how confident I might be looking in this photograph. But मेरी बहुत फट चुकी थी honestly. But I was very happy to be present over there, and just having this opportunity was a very good thing for me. I was like, मेरा portfolio भी बहुत strong हुआ था इससे. So now why travel solo? आप बताइए क्यों सोलो ट्रैवल करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि गोवा के प्लान्स नहीं मल्टीप्लाई हो पाते हैं. यस, डू यू वांट टू से एनीथिंग? एडवेंचर, I know, right? You don't need to depend on anybody. The best thing. That is very, very good. Yes, you don't have to adjust to anybody. Let's say that you eat all kinds of cuisine. Maybe you eat non-veg as well. आप abroad जा रहे हैं, वहाँ का non-veg बहुत popular है, and they experiment with non-veg a lot as compared to vegetarians. So if you're traveling with a vegetarian, sometimes it could get difficult for you that you want to try a cuisine and you're not able to try a cuisine, right? Which happened with me जब मैं first time tours and travel के through गई थी. सब जगह 6 के 6 दिन उन्होंने मुझे इंडियन खाना दिया, and वही पनीर की सब्जी, भिंडी की सब्जी, बीन्स की सब्जी. एंड आई वाज लाइक यार ये तो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा बना लेती है. सो आई डोंट वांट टू बी इन पेरिस एंड हैव पनीर की सब्जी ओवर देयर. सो आई वाज लाइक नहीं मुझे ये नहीं करना है. आई एम ओके, ठीक है, मुझे पास्ता मिलेगा तो भी चलेगा, मुझे एक अच्छा डेजर्ट मिलेगा तो भी चलेगा, बट मुझे पनीर की सब्जी और भिंडी की सब्जी नहीं खानी है पेरिस में जाके. सो वेरी वेल सेड मैम. येस, यू डोंट हैव टू एडजस्ट सो मच. समबडी सेड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. येस, आपको अपनी स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है. एब्सोल्युटली राइट. सो यू आर ओवर हियर, सारी लग्जरीज है, वहाँ आप जाओ, एयरबीएनबी भी रहो, आपको बर्तन धोना पड़ता है. अगर आप 1 महीने के लिए रह रहे हैं तो शायद आपको कचरा पोता भी करना पड़ता है. पैंडमिक तो अब आया है जब हमने ये सब सीख लिया है, राइट? पैंडमिक आया और सब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा तो कचरा पोता घर में कर लिया जब मेड्स का आना बंद हो गया था, राइट? बट ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द पीपल हु आर देयर इन योर लाइफ. जो चीज़ों को आप ग्रांटेड लेते हो, आप उनकी अहमियत समझते हो. एनीबडी एल्स? टू फाइंड अनदर, सर? क्या? Oh, solo travel partner. I thought partner because I'm still single. इसलिए I'm just saying ट्रैवल पार्टनर. एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसा मैंने कहा कि आप हॉस्टल्स में जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल समटाइम्स, राइट? एंड यू कैन ट्रैवल विद देम, यू गेट अलॉन्ग विद देम. आपको उनके कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, उनके खाने पीने के बारे में जानने को मिलता है. आई रिमेंबर जब भी मैं ट्रैवल करती थी, स्पेशली जब मैं वियना गई थी, जो मुझे बहुत पसंद आया था. सो वहाँ बहुत स्टूडेंट्स होते थे जो ड्रेसअप होते थे बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट्स में, क्योंकि वो ओपरा के टिकट्स बेचना चाहते थे. वहाँ जो ओपरा होता था उसकी टिकट्स बेचना चाहते थे. सो वो आते थे मेरे पास, मुझसे बात करते थे, हाई वुड यू लाइक टू बाय दिस. आई एम लाइक नहीं. एंड देन दे वुड से, ओह योर इंग्लिश इज सो फैंटास्टिक. एंड आई वाज लाइक हाँ तो. एंड देन आई रियलाइज्ड
दैट एटलीस्ट यूरोप में उस टाइम पे, दिस इज 8 years बैक, दे हैड अ नोशन कि हम इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती है, या हम इंडियंस की ग्रामर जो है वो बहुत ख़राब है. क्योंकि ये मेरे साथ वियना में हुआ, उसके बाद जब मैं बाली में गई तब हुआ, उसके बाद मैं अमेरिका गई तब हुआ. एंड आई रियलाइज कि आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों को लगता है कि इंडियंस को इंग्लिश ठीक से बोलनी आती नहीं है या हमें ग्रामर नहीं आती है. सो मुझे 2-3 जगह कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे कि योर इंग्लिश इज़ फैबुलस, वाओ योर इंग्लिश इज़ फैंटास्टिक, आप यहीं रहते हो क्या? ऐसे नो, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं यहाँ से 1 हफ्ते के लिए आई हूँ, आई डोंट लिव ओवर हियर. सो यू गेट टू नो द कल्चर, you get to know the cuisine. Anybody else, you find more travel partners. Learnings, humbleness, learning language. Yes, I remember when यहीं पे AMA में मैंने, I was 15 year old जब मैंने फर्स्ट टाइम फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी फॉर 1.5 month. एंड तब मुझे था कि क्या करना है ये लैंग्वेज सीख के, इंग्लिश हिंदी गुजराती आती है बहुत है, आई डिडंट हैव सच बिग ड्रीम्स ना. मुझे ऐसा था कि मुझे फ्रांस में जाके सेटल होना लाइफ में कभी. सो आई लर्न फ्रेंच ओवर हियर. जब मैं एम्स्टरडैम गई फर्स्ट टाइम एज अ सोलो ट्रैवलर, मैं बस में बैठी एंड आई जस्ट डिडंट नो वेयर आई वाज गोइंग. तो मेरे आगे एक लेडी बैठी थी, एंड आई आस्क्ड हर कि मुझे ये डायरेक्शन यहाँ जाना है. एंड शी सेड आद्रुआ, विच इज स्ट्रेट इन फ्रेंच, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. शी सेड आद्रुआ, आगोश, ये वो. And I said, for a second, I was like, okay, she's speaking something else. But luckily, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी, ये बेसिक्स, वीक्स के नाम, मंथ्स के नाम, ये सब तो आपको याद रहते ही है. It helped me. And I could reconnect the dots कि चलो अच्छा हुआ, उस वक्त मैंने 5 साल पहले फ्रेंच सीखी थी. आज, lady is able to explain me the roots and I'm able to reach over there. So it helps you to learn language. When I went, मैं तो सबको जाके नमस्ते तो सिखाई देती थी. आई यूज टू ऑलवेज टेल देम कि ये पूछते भी थे कि आपके भाषा में कैसे ग्रीट करते हैं. सो आई यूज टू से नमस्ते एंड आई सेड अगर आप थोड़ा और रीजन के अंदर जाओगे सो इट्स केमचो, सो इट्स नमस्ते एंड केमचो. सो टू लर्न लैंग्वेजेस, ग्रैटिट्यूड, बिकॉज यू फील एवरी टाइम, जैसा मैंने कहा कि जो भी मैंने स्पॉट्स किए, एडवेंचर स्पॉट्स, आप बस भगवान को शुक्रिया करते हो कि आप जिंदा रह गए, बहुत है. सांस ले रहे हो, वो बहुत बड़ी बात है, राइट. सो यू हैव द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टू एवरीबडी. जब मैं स्कूबा डाइविंग कर रही थी फर्स्ट टाइम, एंड इतनी सारी मछलियों के बीच में मैं इंसान थी, मेरे इंस्ट्रक्टर भी मुझे छोड़ के चले गए, बिकॉज दैट्स द रूल. इफ़ यू हैव टू पास द एग्जाम, वहाँ पे ऐसा होता है कि वो आपको छोड़ के निकल जाते हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड योर ओन वे. सो दिस होल स्कूबा डाइविंग एक्सपीरियंस वॉज एब्सोल्युटली मेडिटेटिव फॉर मी. मैं वहाँ 15 मिनट थी उस डाइव के अंदर, एंड सिर्फ मछलियों से घिरी हुई थी. एंड आई जस्ट, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मछलियों को कैसा लगता होगा फिश टैंक में, जब हम आके ऐसे नॉक नॉक करते हैं उनके फिश टैंक में और हाय हेलो ऐसे सब बातें करते, तो उनको कैसा लगता है. कि अब मुझे वैसी फीलिंग आ रही थी, मछलियाँ मेरे आजू बाजू थी और देख के जा रही थी, पता नहीं स्माइल भी कर रही थी, तो मुझे पता नहीं चल रहा था. आई हैड दोज ग्लासेस ऑन माई आईज, ऑफकोर्स दे कांट फीड मी, सो इट्स गुड, हम तो फिर भी फिश टैंक में फीड कर देते हैं. सो आई रियलाइज़ कि उनको शायद कैसा लगता होगा जब हम इंसान एक फिश टैंक को नॉक करते हैं, उनको ऐसे घूर के देखते हैं, एक्वेरियम्स में जाते हैं. आई हैड द सेम feeling at that moment. So you feel gratitude towards the life that you are living, every breath that you are taking, आप उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हो. And of course a life full of stories. शायद इसलिए आज मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी सारी कहानियाँ हैं बोलने के लिए, इसलिए मैं यहाँ हूँ. So traveling gives you a lot of stories as well. Okay, any guesses? Of course I hope you know that's me in the center. ये फोटो कब का था? Which year? Any guesses? Now I'm here over here in front of you. 8 years back, we are in 2022 હમણાં, એટલે કેટલા થયા? 2016? My math is a little bad. 14? Okay, let's see. 2016, yes. And then that's me, 2019. Now, I'm not trying to show the transition I had. मैं ये नहीं दिखाना चाहती हूँ, but मैं ये बताना चाहती हूँ कि with every travel, with every experience that you add, you become more confident. So if you see my body language over there, my smile over there, maybe there's a lot of innocence over there, there's little shyness over there, I'm little slouching also जब मैं photo ले रही हूँ. And if you see over here, I'm much more confident, I have a better posture also, and I have that fire in my eyes. So when you challenge yourself, आपको जब लगता है अंदर से कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या आपके साथ इतना कुछ ज़िंदगी में हो चुका है, तो वो आपकी आँखों में दिखता है. आपको उसके लिए कोई फ़ोटोशूट करवाने की ज़रूरत नहीं है, पर आपकी आँखों में दिखता है. आप बात करते हो तो पता चलता है. जो ज़्यादातर लोग कहते हैं किसी के लिए कि he is very well exposed, આનું exposure level બહુ સારું છે. Why do they say that?
एक्सपोजर लेवल कहाँ से आता है? इन सब चीज़ों से ही आता है, स्टोरीज से ही आता है, बातों से ही आता है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है उसी से आता है, राइट? आज अगर आप कहीं गए हो तो आप बोल सकते हो कि हाँ लंदन में ऐसा होता है, या कनाडा में ऐसा होता है, या मान लीजिए कश्मीर में भी ऐसा होता है, राइट? कोई मुझे पूछेगा कि अच्छा आप ज़मीन पर सोए हो, तो मैं बोलूँगी ज़मीन पर क्या, मैं तो पहाड़ पर सोई हूँ, राइट? 10,000 फीट अबव मैं स्लीपिंग काउच के ऊपर क्या, मैं से नॉर्मल सिर्फ चादर बिछा के पहाड़ पे भी सो चुकी हूँ मैं. सो द लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस एंड हाउ यू ऐड एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये पिक्चर कब का होगा? 6-7 साल, विच इज 2015 आई बिलीव, 2017, लिटिल मोर क्लोजर. And this is me, पिछले साल का ये फोटो है. I was hosting for Samsung event, right? So with each journey, इसके पहले वो 2016 का फोटो था जो मैं टेडी बियर के साथ खड़ी थी. And then this is 2017, again a beautiful place in South Kodaikanal में I was traveling over there. And I found this lovely picture जब मैं इसका presentation बना रही थी. And I saw that how the entire journey of mine has helped me. Each experience has helped me to grow further. So I feel the world is full of opportunities. सिर्फ कोई एक्सप्लोर करने वाला चाहिए. दैट्स ऑल यू नीड राइट नाउ. एंड आई एम नॉट सेइंग अब्रॉड ट्रैवल करना ज़रूरी है, आप इंडिया में ट्रैवल कीजिए. थैंक्स टू माई एंकरिंग मैंने इंडिया में ज़्यादातर जगह ट्रैवल किया है, चाहे केरला है, कोलकाता है, नॉर्थ में शिमला है, मनाली है, ओवर हियर गुजरात ऑफ कोर्स, यू नो बीइंग माई होम टाउन आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट एज वेल. सो इट हेल्प्स यू स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग. आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म दैट आप कैसे किसी के एक्स गर्लफ्रेंड के घर रह सकते हैं, किसी के फ्रेंड के यहाँ रह सकते हैं. नाउ विद डिजिटल वर्ल्ड अगर आप एक पोस्ट भी डाल दें, एक स्टोरी भी डाल दें कि हे गाइस मैं है ना अगले हफ्ते मनाली जा रही हूँ, आई वुड बी हैप्पी टू कनेक्ट विद पीपल, अगर आप इतना भी लिख देते हैं काफ़ी लोग मैसेज कर देते हैं. आप एयरबीएनबी में जाके रहेंगे जहाँ पे 4 बेडरूम का एयरबीएनबी है, सो ईच रूम में कोई रह रहा है. सो यू बिल्ड नेटवर्क्स ओवर देयर विच विल नॉट ओनली हेल्प यू पर्सनली बट इट हेल्प्स यू प्रोफेशनली एज वेल. अगले महीने मैं बैंगलोर जा रही हूँ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए. मैं वहाँ 3 दिन और रुक रही हूँ बिकॉज आई मेट समबडी जब मैं अंडमान गई थी स्कूबा डाइविंग करने के लिए. तो मैं वहाँ पे किसी को मिली थी एंड वो और मैं अभी भी टच में है. एंड ही सेड तू आ रही है, प्लीज़ कम स्टे विथ मी एंड माई वाइफ, वी विल बी हैप्पी टू होस्ट यू, जस्ट कॉन्फ्रेंस अटेंड करके मत चली जाना. आई सेड डेफिनेटली. एंड वी जस्ट कनेक्टेड अगेन, वी स्पोक 1 घंटे के लिए. हमने स्कूबा डाइविंग की बातें करी, हमारी मेमोरीज जो थी वो सब शेयर करी. अंडमान में जहाँ ज़ीरो नेटवर्क था, and I love being on social media, so जहाँ ज़ीरो नेटवर्क था, I was without any social media. एक जगह आके मेरा इंस्टाग्राम अटक गया था. जैसे ही मैं लैंड हुई एक फ़ोटो पे आके इंस्टाग्राम अटक गया था. वो ना किसी की और की फ़ोटो थी, गॉड नोज, एंड उसके ऊपर चल ही नहीं रहा था 1 हफ्ते तक. सो आई वॉज देयर विदाउट नेटवर्क एंड आई वॉज टेलिंग माई फ्रेंड, आई वॉज लाइक आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव विदाउट इंटरनेट, बट या थर्ड वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक पीपल से, राइट? सो अगेन आई एक्सपीरियंस समथिंग. सो योर नेटवर्किंग ग्रोज, your confidence grows, like I already showed you. Creative space also grows, right? So you are in the rat race, you are in the same run every day, and then sometimes just being somewhere else, maybe on mountains. मुझे आज भी याद है मैं गई थी मनाली के वहाँ जो जगह है मनाला करके एक ट्रैक होता है, मनाला ट्रैक. सो आई वेंट देयर ऑल्सो एंड मैं वहाँ पहाड़ पे 1 घंटा बैठी थी एंड आई जस्ट रोट डाउन अ शॉर्ट स्टोरी. आई एम नॉट इनटू राइटिंग स्टोरीज, आई ओनली राइट स्पीचेस फॉर माई एंकरिंग. मैं सिर्फ वो स्पीच लिखती हूँ, बट आई जस्ट फेल्ट आई हैड द टाइम, आई हैड अ ब्यूटिफुल व्यू and I was like, I had a pen and diary which I always carry with me, and I was like, yeah, just write it down. So I feel creatively also traveling helps you to grow a lot. You're less afraid, like I said, after being on probably a good high peak in Kashmir and being underwater in Andaman and Bali, and then being in minus 30 degrees in Canada. I literally feel that अब मुझे चीज़ों से कम डर लगता है, कुछ एक्सप्लोर करने से कम डर लगता है, किसी को चैलेंज करने से कुछ कम डर लगता है, राइट? 2016 का जो आपने मेरा फोटो देखा, आई वॉज वेरी मच, हर चीज़ से मुझे डर लगता था. सिर्फ स्टेज पे आने से डर नहीं लगता था, बट मुझे हर चीज़ कुछ नया करना होता तो मुझे डर लगता था कि ये मैं कर पाऊँगी, ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो नाउ हाउ टू प्लान, ऑफकोर्स टू प्रायोरिटाइज. सब मुझे बोलते हैं कि ट्रैवल करने के लिए पैसे नहीं है, पैसा बहुत चाहिए. बट आई पर्सनली फील दैट अगर आप एक गाड़ी लेने के लिए पैसे सेव कर सकते हैं, घर के लिए पैसे सेव कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पैसे सेव कर सकते हैं, तो आप ट्रैवलिंग के लिए भी पैसे सेव कर सकते हैं. एंड लाइक दे से दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स, इट्स एग्जैक्टली दैट वे, एवरी पेनी काउंट्स, राइट? आपको लगता है अरे 100 रुपये में क्या हो गया, बट 100 रुपये में आप नेपाल में बहुत अच्छा मील खा सकते हैं अगर आपने वो 100 रुपये बचाए हैं, राइट? सो एवरी पेनी, एवरी ड्रॉप, सो इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग
एक्सपेंस ट्रैकर, बहुत सारी ऐप्स है जहाँ पे आप अपना एक्सपेंस जो है ट्रैक कर सकते हैं. सो यू हैव एन आइडिया दैट ये चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए. एक साइकोलॉजिकल फैक्ट कहता है दैट अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं कहीं पे भी ऑन एनी साइट, यू हैव टू वेट फॉर 7 days. अगर आप उसे कार्ट में डालने के बाद अगर आप 7 दिन तक उसके बारे में नहीं सोचते और आपको लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट के बिना मेरी ज़िंदगी चल रही है, तो आपकी ज़िंदगी चल रही है. और 7 दिन के बाद अगर आप वो ऑर्डर करोगे, दिस मीन्स दैट यू नीड इट. सो यू हैव टू वेट फॉर 7 days. सो दैट वे यू कैन ट्रैक योर एक्सपेंसेस. व्हेन आई से सब्सक्राइबिंग टू ईमेल्स, व्हाट आई मीन इज़ दैट जैसे अभी रक्षाबंधन आ गया, उसके बाद दिवाली आएगा, सो उसके 1 महीने पहले बहुत अच्छी डील्स आती है फ्लाइट्स पे. So you can get very good deals. Just when pandemic hit, मेरा सिंगापुर का ट्रैवल प्लान था. I got 12,000 rupees में to and fro ticket to Singapore. मुझे विस्तारा का मेल आया था. They had a deadline that if you're traveling in March and you're booking in November, so this is the price, to and fro price, Singapore, Ahmedabad, Singapore, 12,000 rupees. I booked it. I was like, चलो बुक कर देते मार्च का. मैंने बुक कर दिया. Of course, फिर पैंडमिक आ गया था मार्च में. The flights got cancelled. I got the refund and everything. But if you subscribe to these mails, you keep a note of it, you can get very good deals to the places you want to travel at a reasonable price. Investments, if I'm not into finance so much, but my SIPs and mutual funds have really helped me a lot to travel. Every महीने भले अकाउंट से पैसे कटते हैं, but जब वो लमसम हो जाता है, it helps you to plan better your travel. Dreams, of course, if you don't have dreams, like I said, मेरा एक ड्रीम था 25 साल के पहले मुझे ओपन वाटर डाइविंग का कोर्स करना है. सो वो ड्रीम था एंड इट वाज हिटिंग मी, राइट. मेरा एक ड्रीम था कि मुझे बंजी जंपिंग करना है. मे बी यू कॉल इट लक और वॉट एवर, दैट मेरा प्रोफेशन मुझे नेपाल ले गया एंड आई वॉज एबल टू डू दैट, राइट. सो यू नीड टू हैव ड्रीम्स. Hostel life, when I say hostel life, is that again you don't need to live in 5 stars and luxury until unless you can afford it. But if only traveling is your motto, then you can be comfortable with a good hostel also. There are so many hostels at a very better and reasonable price where you can live. So you can plan in that way. And the every year challenge motto. What is the every year challenge motto? To challenge yourself that okay, આ વર્ષે હું આ કરીશ, આ વર્ષે હું કશ્મીર જઈશ, આ વર્ષે હું ટ્રેકિંગ કરીશ, આ વર્ષે whatever, you know. इंडिया में भी स्कूबा डाइविंग होता है. सो आई विल गो टू मे बी गोवा एंड डू स्कूबा डाइविंग, राइट. यू ट्राई टू लुक ऑन गूगल दैट हाउ यू कैन एक्चुअली डू अ चेक टू दोज ड्रीम्स, टू दोज मोटो. ओके, थिंग्स टू कैरी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग, स्पेशली सोलो. पहले आप लोग बता दीजिए. शूज़, येस, डिपेंडिंग आप कहाँ जा रहे हैं, राइट. इफ आई वेंट फॉर -30, आई नीड टू हैव स्नो शूज़. इफ आई वेंट फॉर ट्रैकिंग, आई नीड टू हैव द ट्रैकिंग शूज़ लाइक यू कैन सी इन द फोटोग्राफ. टूथब्रश, वो तो वैसे भी लेके जाना है यार, आप फैमिली के साथ जाओगे तो भी लेके जाना. Comfortably dressed, I completely agree. I remember the first trek I went and मैं वैसे ही गई थी जैसे मैं यूरोप गई थी, honestly speaking, very heart to heart I'm saying. And you know, I had 10 kgs और उस वक्त 10 kg का बोझा उठा के 1 हफ्ते तक चलना, वो भी uphill, was very difficult for me. But मुझे नहीं पता था कैसे पैक करते हैं, मैंने ट्रैक नहीं किया था कभी लाइफ में, you know. So I had the things जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी. I just had to carry 5 decent normal sports t-shirts and maybe 2 or 3 track pants. That's it. But I carried jeans and I carried a dress. मुझे लगा ये जवानी दीवानी की तरह वो फायर कैंप होगा शाम को, you know, तो उसमें you know, you never know, all those things will happen which happened in the film. मैं उससे इंस्पायर होके गई और मैं डे 1 पे जब ट्रैक पे पहुंची तभी हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उनका नाम राहुल था एंड ही सेड इफ एनीबडी हु हैज़ कम ओवर हियर आफ्टर वॉचिंग ये जवानी है दीवानी, तो जस्ट लेट मी गिव यू अ हेड्स अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. एंड आई वाज लाइक अब तो बहुत लेट हो चुका है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड द बुकिंग्स और मैं यहाँ खड़ी हूँ ऑलरेडी 5,000 फीट पे, तो मैं खड़ी थी और मुझे 12-13 हज़ार फीट तक जाना था. सो आई लर्न हाउ टू पैक, जो मुझे नहीं आता था. आई लर्न हाउ टू पैक लाइट ऑल्सो एंड लाइक मैम सेड, कंफर्टेबल ड्रेसिंग, कंफर्टेबल शूज़. एनीथिंग एल्स? એક્સચેન્જ મની એક્સચેન્જ કેવી રીતે કરવાનું, રાઈટ. સો આઈ ઓલવેઝ કેરી એક્સિસ બેંકનું પેલું કાર્ડ આવે છે, કરન્સી કાર્ડ હોય છે મારી પાસે. સો આઈ યુ નો જનરલી કેરી દેટ કાર્ડ વિથ મી એન્ડ few dollars as well, depending wherever I'm going. If I'm going to Thailand, it's baht. If I'm going there, money. Medicines is yes, an emergency medical kit is very important. I had that, I always have that, so that is very important. Anything else? इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स. सो जो मैं पेन और डायरी आपको बोल रही थी कि आप हमेशा अपने पास रखिएगा, उसमें फर्स्ट पेज पे आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, आपके फैमिली डॉक्टर्स का नंबर होना चाहिए. द रीज़न बीइंग
okay, I don't want to share. कुछ भी हो सकता है, बट आई टेल यू अ फनी स्टोरी ऑल्सो. मैं पिलियन बन के बाइक पे पीछे बैठते, सो एक बाइकर्स गैंग के साथ, बुलेट बाइकर्स गैंग के साथ अहमदाबाद से जोधपुर गई थी पीछे बैठ के, मेरे एक फ्रेंड के पीछे बैठ के. वी वर 10 ऑफ अस, 10 बुलेट बाइक्स थी. फर्स्ट टाइम अगेन मुझे चैलेंज करना था. आई वेंट देयर. बीच में हम रुके पेट्रोल भरवाने के लिए गैस स्टेशन पे. कोई पता नहीं हाईवे में बीच में कहीं रुक गए. इंडियन स्टाइल टॉयलेट था वहाँ पे. आई वेंट देयर, आई डिड माई थिंग व्हाट आई हैड टू डू. जैसे ही मैं उसमें नीचे बैठी टॉयलेट करने के लिए, मेरा फ़ोन यहाँ था, पॉप हुआ और नीचे गिर गया. इट वेंट इन द थिंग. एंड ऑफकोर्स जैसे मैं बोल रही हूँ, वो गाँव का कोई टॉयलेट था छोटा सा, सो इट वॉज नॉट क्लीन एट ऑल. मतलब आई कांट इवन टेल यू द परिभाषा ऑफ एट ऑल. सो वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं था. लकीली मेरे पास हमेशा ड्राई टिश्यूज़ होते हैं, छोटे टिश्यूज़ का पैक, और सैनिटाइज़र होता है. टिश्यू निकाला मैंने बैग से, मैंने उठाया. इट्स अ वेरी बैड विजुअल, आई एम सो सॉरी, बट येस एनीवे मैंने उसको वाइप किया, सैनिटाइजर से क्लीन किया, बट वो फ़ोन कभी ज़िंदा नहीं हुआ. रेस्ट इन पीस. मैंने उसको जोधपुर में, मैं जोधपुर हम पहुँचे 2 दिन के बाद, हम जोधपुर पहुँचे बाइक पे, हॉल्ट लिया, सब किया. उसको चावल में डाला, बिकॉज गूगल पे लिखा था आप चावल में डालो तो पानी मॉइस्चर सब सोख लेता है. उसमें पता नहीं क्या क्या चला गया था. सो जोधपुर में ठीक करवाया, ठीक नहीं हुआ. ऑफकोर्स आई केम टू अहमदाबाद, बट ऑफकोर्स आई वॉज विद पीपल दैट टाइम, द बुलेट गैंग, सो आई न्यू पीपल. पर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो और ऐसा कुछ हो जाए, सो दैट टाइम द डायरी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट. यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट फैमिली members, doctors or anything if there is an emergency. So you have to carry medicines. Anything else? Camera, yeah, camera or a good phone. I feel nowadays even phones are doing absolutely fantastic role. But yeah, if you have the knowledge of camera, ISO and aperture and all those things, if you are aware, then definitely आप ऐसे ट्रैक्स पे जाते हैं तो जनरली एक फोटोग्राफर तो नसीब से होता ही, कोई ना कोई तो होता ही जो फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, एमेच्योर फोटोग्राफर, ऐसा कुछ होता है जो बनना चाहता है, राइट. सो कैमरा. एनीथिंग एल्स? रेनकोट एंड dry fit, yes. So when I went here, I carried a dry fit towel, कहते हैं उसे, towel जो 2 सेकेंड में सूख जाता है, right? Yeah, so dry fit towel and raincoat of course, because you never know कब कहाँ कैसे मौसम बदल जाए. So yes. Anything else? वाटर बॉटल. हाँ, वरना अगर आप ऐसे जा रहे हो तो नदी का पानी बहुत अच्छा होता है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर ट्रैकिंग, इट्स द फ्रेश वाटर. पार्वती नदी के वहाँ भी जब मनाली के वहाँ आई वॉज स्टेइंग, सो यू नेवर नो. या इट डिपेंड्स आपका पेट कैसा है, एपेटाइट कैसा है. देन yes, the water might not suit you. I remember मैं फ्रांस गई and they asked me sparkling or non-sparkling. I was like regular और बिस्लरी तो पता है मुझे, बट स्पार्कलिंग और नॉन स्पार्कलिंग क्या होता है, यू नो. एंड आई ट्राइड द नॉन स्पार्कलिंग वाटर एंड मुझे इतना मज़ा नहीं आया. लाइक अपना तो नॉर्मली, सॉरी, आई ट्राइड द स्पार्कलिंग वाटर. लाइक नहीं, नॉन स्पार्कलिंग ही सही है, अपना देसी नॉर्मल वाटर जो आप देते हो मुझे वही चाहिए वहाँ से. सो या, कैरिंग अ वाटर बॉटल. ऑफकोर्स इफ़ यू गो यूरोप, अमेरिका, कैनेडा, यू कैन हैव द टैप वाटर ऑल्सो. सो इफ़ यू जस्ट कैरी अ गुड वाटर बॉटल, आप भर के उससे पानी भी पी सकते हो. ओके, दीज आर माई लिस्ट. If you're traveling solo, a pepper spray is important. Again, if you watched Queen, if you remember, उसमें एक scene है where कंगना का कोई बैग चुरा लेता है and all, then she hits, right? So that way, if you're traveling solo, it's always good to have a छोटा सा pepper spray with you. कभी भी कुछ भी हो जाए तो आप उनके आँखों में स्प्रे कर सकते हो, right? So that is there. Wet wipes, मुझे बहुत काम आए थे जब मैं पहाड़ पे गई थी, when I had to डू माई नंबर 2 बिहाइंड पहाड़, राइट. पानी वानी का इतना कुछ सोल्यूशन नहीं था. सो वेट वाइप्स बहुत काम आए थे. अगर आपकी गाड़ी कहीं अटक गई है मिडल ऑफ द हाईवे में, अगेन राइट, यू डोंट नो, कोई गराज नहीं है, कुछ नहीं है, सो दैट टाइम वेट वाइप हेल्प्स यू. मेडिसिन्स लाइक दिस सेड. गिफ्ट्स, वाई एम आई सेइंग गिफ्ट्स? बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू अनदर कंट्री, आप एयरबीएनबी में रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, किसी के घर पे रह रहे हो, इट्स ऑलवेज गुड. जब मैं गई थी रोटरी कैंप की तरफ से, मैं 10 डब्बे ले गई थी सोन पापड़ी के, बिकॉज लाइट टू कैरी, ख़राब नहीं होती है, राइट. आई नो चल जाएगी 3-4 दिन के बाद भी. सो मैं सोन पापड़ी लेके गई थी. वो लोग जो दूसरे एक्सचेंज स्टूडेंट्स आए थे, कोई हमारे लिए की चेन लेके आए थे, कोई बुक मार्क लेके आए थे. सो यू कैन कैरी समथिंग नाइस. मैं जब एम्स्टरडेम गई थी और मैं काउच सर्फिंग में रुकी थी, मैं एक कुर्ता लेकर गई थी. आई हैड सीन द जेंटलमैन जिनके वहाँ मैं रुक रही थी, सो थोड़ा अंदाज़ा मुझे आ गया था कि इनको कुर्ता फिट हो जाएगा. सो मैं नेशनल हैंडलूम से कुर्ता लेकर गई थी. सो समथिंग इंडियन विच दे चेरिश, विच दे रिमेंबर फॉर एवर, राइट. सो ऐसा कुछ. डायरी पेन, हैंड सैनिटाइजर, देसी पेपर सोप, बचपन में तो बहुत मिलते थे.
I still have that in my wallet. Yeah, you still get it and it's very very useful. पता नहीं कब कहाँ कैसे काम आ जाए. So always carry that. पावर बैंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्पेशली आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आप सुबह निकले हैं और रात को पूरा शहर घूम के आएंगे, सो दैट टाइम पावर बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ड्राई फ्रूट्स बिकॉज दे आर वेरी फिलिंग. अगर आप बजट ट्रैवलिंग पे है, लेट्स से आपको 4 बजे भूख लगी है, यू डोंट वांट टू हैव $20 का नाचोस, क्योंकि आपका कैलकुलेशन चलता है यूरोप में हो तो मे बी 8 2s, कनाडा में ऑल्सो 8 2s 1600 रुपीज़ का नाचोस. यू डोंट वांट टू हैव दैट, सो यू कैन जस्ट हैव सम ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली खजूर, बिकॉज वो बहुत फिलिंग होते हैं. एंड देन भाकरी. भाकरी इज माई फेवरेट गो टू फूड बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग रोटी, ये मुझे लगता है, राइट. इट्स वेरी थिक, आटा भी ऑलमोस्ट सेम होता है. सो आई ऑलवेज कैरी 4 से 5 डब्बा ऑफ भाकरी विथ मी एंड इट्स ऑलवेज इन माई बैकपैक वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग एवरी डे. सो एक छोटा सा ड्राई फ्रूट और भाकरी का डब्बा मेरे साथ होता है. कभी भूख लग गई, सुबह का ब्रेकफास्ट इनफ नहीं था, तो यू कैन जस्ट हैव 1 or 2 भाकरी एंड यू आर गुड टू गो एट लीस्ट. Sorry, I can't hear you. Map? Yeah, so if you're good with phones, then Google Map. But if you want that physical map, I'm not good with it. मतलब मैं तो कभी, yeah. But I was with a trekking gang. Yeah. It will not work. Yeah. So if you can have if you have the ability to read that map, great. Otherwise आप कहीं भी लैंड करते हो, एयरपोर्ट्स पे 99.99% आपको फ्री मैप्स मिल जाते हैं. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है यूरोप पे, व्हेन आई रिमेंबर एम्स्टर्डम में, यू गेट दोज बुकलेट्स ऑल्सो, जहाँ आप 2 दिन 3 दिन का हॉप ऑन हॉप ऑफ भी ले सकते हो चीप प्राइस पे. इट्स रीजनेबल, सो आप एयरपोर्ट पे जाते ही आप एक्सप्लोर कर सकते हो पहले ही, सो दैट आप जब बाहर जाओगे तो आपको वापस कहीं सेंटर नहीं ढूंढना पड़ेगा फ्रॉम वेयर टू गेट गुड पैकेजेस, राइट. सो मैप्स इज अ वेरी गुड thing. I'll also add it to my presentation over here. Some of the apps that help me, Skyscanner helps me to get good tickets, always, it's at a reasonable price, it's at a decent price, so Skyscanner always help me. Airbnb, like I said, for staying, the reviews and everything, it helps me. And then TripAdvisor, जहाँ Zomato और Swiggy नहीं होता है, so वहाँ TripAdvisor काम आता है. आप TripAdvisor पे लिख सकते हैं good eating joints in Nepal, let's say, good places to maybe have a coffee, good cafes. So TripAdvisor पे वो चीज़ें आती हैं. TripAdvisor is more global than any other apps. So these are the 3 apps that I generally use. When I was in Calgary in Canada, of course they had their own local apps, Alberta app, Alberta Travelers app. So you can always Google those apps as well, and you can download that. Now they have transit apps as well, train and bus apps for each country. So you can download that, you can buy tickets online. They have 1-day passes for the buses also. So अगर आपका एक टिकट 1.5 घंटे का होता है जो $5 का होता है, पर आपको पता है कि आपको पूरे दिन घूमना और आपको बहुत सारी बसेस चेंज करनी है, सो वो एक टिकट आपको $10 या $15 में पूरे दिन का टिकट मिल जाता है, राइट. सो इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 ticket for 90 minutes, you buy that 1-day pass, so that helps you also a lot. Okay. If you want to share your travel stories, this is the time, this is the platform. I invite you all. And if you have any other set of questions, feel free, please ask. Thank you so much, everyone. Thank you. Feel free to connect with me. I will be happy to share more stories. I'll be happy to hear your stories as well. I'm so sorry, yaar, I took so much of time. First of all, आप लोग के सीट पर feedback form है, so first of all, fill that form. Okay, so I feel honored to propose this vote of thanks on behalf of Ahmedabad Management Association. So I wholeheartedly thank my guest speaker, Ms. Lipi Goyal, for giving us this knowledge about everything. First of all, I was I don't have the guts to travel alone before this session, but I will definitely travel alone after that. I just want to add one more thing. मैं जब अंडमान गई थी हैवलॉक आइलैंड पे स्कूबा डाइविंग का कोर्स करने के लिए, मुझे इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि आप पहली गुजराती लड़की हो जो स्कूबा डाइविंग करने आई है. एंड आई हैड पुट दैट स्टोरी कि ऐसा ऐसा हुआ, एंड सो मेनी गर्ल्स सेड कि अब तो हम भी जाएंगे, अब तो हम भी जाएंगे. सो जस्ट आई हर्ड यू, सो आई ऑलवेज से मोर पावर टू एवरीबडी एंड प्लीज़ एक्सप्लोर, ताकि कभी कोई जाके ये ना बोले ओ इंडियंस को इंग्लिश भी आती है, ओ आप तो पहली गुजराती लड़की है जो यहाँ पे स्कूबा डाइविंग करने आई. Exactly. So I thank all of you for being an amazing audience, and please fill the feedback form here, and it's my humble request to all the youth who are here. So Youth Day is coming on 12th of August, so please give us small bites of you telling about what youth are capable of.
So it will be a great help from your side. So thank you all for being an amazing audience, and thank you, ma'am.